Safira Pakistan. Program focus on the life and achievement of Pakistani American. Safir Pakistan. Assalamu alaikum. Walaikum salam. And I'm very glad that you are here today. I'm honored to be here. Entire Pakistani American community, Muslim community, really proud of you that you get through this great position. I mean, now we have a voice in the White House. So what's your opinion about the Muslim American community in America? I believe that the Muslim American community is strong, vibrant, and has tremendous potential, inshallah, to help shape the Islamic world and the rest of the world. Muslim values are values that should help guide everyone. Values about compassion, mercy, values about overcoming difficulty, values about peace, negotiation, working out difficulties. These are Muslim values that the entire world needs. And so in my view, the Muslim American community is well positioned to help give great benefits to the United States and the rest of the world. As you know that the Pakistan government really supported America a lot. As you know that the Pakistan government supported United States of America a lot, in a very big way. Yes. A lot of challenges Pakistan is facing. Yes. Terrorism problems, killing, drugs, mafia, everything to Afghanistan. But still, America has some doubts. The media, your parliaments, your Congress, your Senate still have some doubts. What's your opinion about that? Pakistan has been a great partner of the United States in the fight against terrorism. Pakistan deserves credit for the good work that it has done. And I think that we need to continue to embrace our partners, embrace our friends, and help strengthen them. And that's what I think the relationship should be. The Pakistani people and the American people have many things in common. We both believe in tolerance. We both believe in having a world free of violence, and we need to work together to make sure that we have a peaceful world. Do you support Iraq war? No, I don't. What is the exclusive message to the American community, Pakistani American community, especially because there's a lot of problems, immigrations, homeland security problems. So do you have any message that Yes. this community come up and be a part of the politics? And Yes. The Pakistani community needs to be engaged in civically. The Pakistani community needs to mobilize voters, needs to support candidates, needs to put up candidates, and have people running for office, people helping to really shape the politics. This is no time to sit on the sideline. This is a time to get fully engaged, fully involved. The Pakistani American community is well positioned to have a very positive impact on American politics, and I urge you to do so. Thank you very much, sir. It's been my pleasure. नादिन मेरे साथ जो काजी साहब यहाँ मौजूद हैं जो प्रेसिडेंट हैं दोगाना के आईन से बातचीत करते हैं. So sir, what going on here? आपके सामने है ये रिट्रीट जो हमने इसकी दस्तूर शुरू किया है अबाउट 4 साल पहले, और ये चौथी रिट्रीट है हमारी, और हमने हर साल एक मीटिंग की है जो डाउ ग्रेजुएट्स के लिए. वैसे इसमें हम सबको इनवाइट करते हैं, और इसमें एक बड़ा अच्छा मौका मिलता है डाउ ग्रेजुएट्स को कि वो सब इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं साथ, और हम कुछ मैटर्स सॉल्व करते हैं कि पाकिस्तान के बारे में भी, अपने डाउ मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड चीज़ों को भी, और इसमें सोशल गैदरिंग भी होती है और फलाही कामों की भी बातें हो जाती हैं एक साथ. तो डॉक्टर साहब आप कब से अमेरिका आए हुए हैं? मैं जी 1989 से आया हुआ हूँ यहाँ पे, और मैं प्रैक्टिस करता हूँ हीमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी विच इज़ कैंसर एंड ब्लड डिसऑर्डर्स. मैं जॉर्जिया में होता हूँ, और मैं अपना डाउ मेडिकल कॉलेज की अलुमनाई के साथ पिछले 10 साल से वेरी एक्टिव हूँ, और मैंने इनके साथ मैं 2 साल पहले सेक्रेटरी था, उसके बाद इस साल मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का. अच्छा, फिर क्या आपका और भी सदर बनने का इरादा है? नहीं जी, मैं यहाँ तक ठीक है. वैसे तो आपने सब पॉलिटिशियन से सुना होगा कि मैं इससे आगे कुछ नहीं करूँगा, लोग कर ले जाते हैं, लेकिन वैसे मेरा इरादा, मेरा पूरा एम जो था वो डाउ मेडिकल कॉलेज से मुताल्लिक़ था, और मैं डाउ मेडिकल कॉलेज के लिए ही सारे काम करना चाहता हूँ ताकि उस इदारे को जिसने हमें आज वहाँ पहुँचाया जहाँ हम पहुँचे हैं, माशाअल्लाह से हमने जितनी कामयाबियाँ हासिल की हैं वो डाउ मेडिकल कॉलेज की बदौलत हासिल की हैं, और उस इदारे ने हमें तकरीबन मुफ्त में पढ़ाया है, और इस चीज़ को हम यहाँ आके बैठ के सोचते हैं कि हमें उसका शुक्रिया अदा करना है, हमें उसके लिए कुछ वापस जाके कुछ करना है, और वो हम कोशिश कर रहे हैं. उस मुल्क के बारे में क्या कर रहे हैं जिस मुल्क ने डाउ मेडिकल कॉलेज को बनाया? वो मुल्क हमारे लिए बहुत अजीज़ है, लेकिन ये मुल्क भी हमारे लिए अजीज़ है, और हमारे पास 2 ममालिक हैं जहाँ पे हम रहते, हमारा ताल्लुक़ है पाकिस्तान से भी, अमेरिका से भी, और हम जो कुछ दे सकते हैं उनको वापस दोनों ममालिक को अच्छे मानों में वो हम कोशिश करते हैं.
अच्छा, आपके क्या मेजर गोल क्या है दोगाना के इन फ्यूचर 5 इयर्स? मेरा मेन एम ये है कि दुगाने के लिए पिछले 5 सालों में हमने बहुत बड़ा फलाही काम शुरू किए हैं, जिसमें हर क्लास की सिल्वर जुबली के साथ हम लोग सिविल अस्पताल में और डाउ मेडिकल कॉलेज में कोई ना कोई प्रोजेक्ट करते हैं। एक क्लास ने पूरा सर्जिकल वार्ड बदल दिया, एक क्लास ने पूरा OB-GYN वार्ड बदल दिया, एक ने रेडियोलॉजी बदल दी, एक हमारी क्लास खुद आ रही है अगले साल जो पूरी लेबॉर्ट्रीज़ को बदल देगी। हमारा इरादा ये है कि हम इतने फ़ंड रेज़ कर सकें और वहाँ पे इतना कुछ प्रोवाइड कर सकें कि वहाँ जो गरीबों का इलाज हो रहा है और जो तालिब इल्म वहाँ पढ़ रहे हैं उस कॉलेज के अंदर, उनको आसानी हो और वो अच्छे डॉक्टर बन सकें और मेडिकल का स्टैंडर्ड वहाँ पे इतना ऊँचा हो जो हम अमेरिका से जो सीख रहे हैं, जो इंग्लैंड से लोग सीख रहे हैं, उसको हम वहाँ पहुँचा सकें। तो मेरा एम तो ये है कि इंशाल्लाह डाउ आज भी सबसे बड़ी अलुमनाई है अमेरिका में। हमारे तकरीबन 600 मेंबर्स इस वक्त हैं जो डाउ मेडिकल के अंदर हैं और 575 हैं जो अपना के मेंबर हैं हमारे। और हमारा इरादा ये है कि इंशाल्लाह इसकी मेंबरशिप सबसे बड़ी होगी और इंशाल्लाह ताला इसके अंदर हमारी कोशिश ये है कि इसको हम इतना बढ़ाएं कि हमारा डाउ से वो और सिविल हॉस्पिटल से वो लिंक हो कि हर किस्म की मदद जो हम उसको कर सकें। नादिन, बोलने के अंदाज से लगता है कि ही गोना बी गुड फ्यूचर लीडर ऑफ अपना, बट गॉड नोस क्या होता है आने वाले मुस्तकबिल में, ये हमें देखना होगा। सफ़ीर पाकिस्तान देखते हैं आप? बहुत देखता हूँ जी हाँ। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका और इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा मेथड है कि लोगों को जो यहाँ के लोग एक्टिविटी, क्योंकि हम जियो पे सारे पाकिस्तान के प्रोग्राम तो देखते ही हैं, लेकिन आपका एक प्रोग्राम है जो यहाँ से थोड़ा सा हमें लिंक रखता है एंड दिस इज़ वेरी नाइस, यू शुड कीप ऑन डूइंग। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम एंड कंसर्न डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। Assalamu alaikum. Thank you for giving me this opportunity. As you know, Dow has been a leader in many areas, and this meeting brings all the Dowites together and physicians from other alumni. We are collectively thinking of doing things that we can do as for our alma mater and for Dowites and for others as a whole. We encourage all the other Dowites who are not part of Dogana to be part of it, so we can collectively do a lot of good things, including doing things for the betterment of Dow Medical College, Dow Medical University, and for things for here. And I think it's extremely important that we have a united voice and we go on from doing our business. नाज़रीन, के साथ ही आपका मेज़बान वक़ार खान आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।